Students, in the previous lecture, you studied about Richard Ebright's collection of butterflies in his basement. Now, we are going to study some new advancements in his scientific life, how he started advancing day by day. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he loved only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. Richard Ebright started feeling it a boring thing tagging butterflies. बटरफ्लाइज के पंखों के ऊपर अधीसिव कोई चिपकने वाला लिक्विड जो होता है ना, उसको लगा करके उसको टैग करने की कोशिश करना कि फिर इसको दोबारा हम पकड़ेंगे, ये बड़ा मुश्किल हो पाता था, हो नहीं पा रहा था। और उसने केवल अभी तक 2 ही बटरफ्लाइज पकड़ पाई थी, जो कि लगभग 75 माइल्स के डिस्टेंस पर गई हुई थी। बाकी जितने को उसने टैग किया था उसको पता ही नहीं चला कि वो मोनार्क बटरफ्लाइज गई तो कहाँ गई। नाउ यू सी, then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair, a county science fair, and lost. अब देखिए, when Richard Ebright was in his class 7th, he got a hint of real science. real science होता क्या है, इसका hint उसको class 7th में जाकर के मिला। क्या हुआ था उस समय? That time he found a county science fair. County science fair means there was a science fair organized in a countryside, है ना, किसी कंट्री साइड में, किसी देहात क्षेत्र में, किसी गांव में, कहीं आसपास एक साइंस फेयर लगा था। तो वहाँ वो गया तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। व्हेन रिचर्ड एवराइट पार्टिसिपेटेड इन काउंटी साइंस फेयर एंड ही फाउंड नथिंग एज रिवार्ड एंड ही saw so many people being rewarded, he was very much sad. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. फ्रॉग टिश्यूज़ पर उसने वर्क किया हुआ था। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप से उसने फ्रॉग टिश्यू पर स्टडी किया हुआ था, उसको एक्सप्लेन किया। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। देन रिचर्ड एब्राइट, व्हेन ही वॉज नॉट रिवार्डेड और अवॉर्डेड एट ऑल, he started feeling that rest of the experimenters had made some real experiment and he had just simply made a neat display. तब वो समझ गया कि बाकी लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था और उसने केवल एक शो लाया था जो ऑलरेडी सब लोग जानते थे। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment. He said the subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. Richard Ebright ने सोचा कि इंसेक्ट्स पर उसका जो एटीट्यूड पहले से था, इंसेक्ट्स पर वर्क किया था, ऐसे तितलियों पर काम और कीड़ों मकोड़ों पर काम, उसने सोचा यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। द फील्ड विच आई हैव डेवलप्ड इन, आई मस्ट मेक रिसर्च इन दैट ओनली, आई मस्ट मेक एक्सपेरिमेंट इन दैट ओनली। सो ही रोट टू डॉक्टर रुकहार्ट फॉर आइडियाज and back came a stack of suggestions for experiments. Finally, he consulted Dr. Ruckert and he wanted to know idea about new kinds of experiments. Dr. Ruckert suggested him lots of experiments that he could do there. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. इन सारी चीज़ों को डॉक्टर रुकहार्ट के सजेशन को जब उसने फॉलो किया तो उसके पूरे कंट्री में जहाँ कहीं भी साइंस फेयर होता था, नेशनल साइंस फेयर होता था, सब में वो नए नए एक्सपेरिमेंट उस लिस्ट से लेकर के करके जाता था और इस तरीके से उसको कई बार प्राइजेस मिले, अवार्ड्स मिले। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. जब वो क्लास 8th में था, he made a new kind of discovery, he made a new kind of work in the field of science. He wanted to find the reason, he wanted to find the cause behind that disease which kills nearly all the monarch caterpillars every few years. हर साल मोनार्क कैटरपिलर्स, यानी कैटरपिलर्स तो आप समझ रहे होंगे ना, बटरफ्लाइज बड़ी होती हैं, उसके पहले वो कैटरपिलर की तरह दिखती हैं, वो छोटे छोटे, उनके पंख वगैरह नहीं होते हैं। तो कैटरपिलर्स कैसे किल कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से, वो उसको जानना चाह रहा था। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाई ए बीटल। एब्राइट ने सोचा कि हो सकता है कि बीटल, आप जाने होंगे भौरा या गुबरैला जो होता है कीड़ा, कह रहे हैं कि बीटल की वजह से हो सकता है बीमारी आ रही हो। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन।
By the way, Richard Everett wanted to know whether beetles were really harmful for caterpillars. He started rearing caterpillars in the presence of beetles. Where caterpillars he kept, he also kept beetles. But beetles did not harm them. That's why his experiment was failed. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अगले साल जब साइंस फेयर प्रोजेक्ट था, तब उसने यह टेस्ट करना चाहा, थियरी देना चाहा कि वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं. द थियरी वाज दैट वायसरायज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. उसने एक थियरी क्या दिया कि बर्ड्स मोनार्क्स को खाना पसंद नहीं करती हैं और वायसरायज जो होती हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं. वायसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. फिर भी वायसरायज बटरफ्लाइज जो होती हैं उनको चिड़िया क्यों खाती है? सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. यानी वायसराय बटरफ्लाई को बर्ड्स खाती हैं लेकिन मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड्स नहीं खाती हैं. फिर भी वायसराय क्यों बच जाती हैं? इसका मतलब जितनी वायसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखती हैं, बर्ड्स उनको नहीं खाती हैं. ये थियरी उन्होंने दिया. Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. Ebright का प्रोजेक्ट क्या था कि बर्ड्स कभी मोनार्क बटरफ्लाइज को खाएंगे कि नहीं खाएंगे. He found that a starling would not eat ordinary bird food. तब उसको क्या पता चला कि स्टार्लिंग बर्ड जो होती है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. और स्टार्लिंग बर्ड जो होती है वो स्पेशली मोनार्क बटरफ्लाइज को ही खाती है. Everett said late research by the other people showed that viceroys probably do copy the monarch. और फाइनली जब एक रिसर्च लोगों के द्वारा आता है तो पता चलता है कि वायसरायज मोनार्क को कॉपी करते हैं. दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. उस साल के काउंटी साइंस फेयर में जब रिचर्ड एवराइट केवल 8 ईयर्स के थे तो जूलॉजी सेक्शन में इस प्रोजेक्ट को पहले स्थान पर रखा गया और पूरे काउंटी में इसको थर्ड प्लेस पर रखा गया. इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एवराइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. When Richard Everett was in his second year of high school, he made a new kind of discovery about an unknown insect hormone, about a kind of hormone which is found in insects only, and this hormone was not known to anybody else. इंसेक्ट्स में, कीड़े मकोड़ों में ऐसे हार्मोन जो कि पहले लोगों को पता ही नहीं था, उसके बारे में उन्होंने डिस्कवरी किया. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. लाइफ ऑफ सेल्स पर नई थियरी उन्होंने जो दे दिया, इसके लिए भी ये चीज़ कारगर थी. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? पहला क्वेश्चन उनका क्या था? मोनार्क बटरफ्लाइज का जो प्यूपा होता है, लाइफ साइकिल में जो प्यूपा बनता है, उस पर 12 छोटे छोटे गोल्डन कलर के स्पॉट्स क्यों होते हैं? Everyone assumed the spots were just ornamental. सबका मानना था कि नहीं, वो तो एक प्रकार का नेचुरल डेकोरेशन है. Everett said, but Dr. Urquhart did not believe it. एवराइट ने कहा कि सब लोग कहते हैं ऑर्नामेंटल है, लेकिन डॉक्टर उर्कहर्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया. टू फाइंड द आंसर एवराइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. इस चीज़ को सर्च करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर, जो प्यूपा के ऊपर 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं और उसका कोई डेवलपमेंट भी होता है कि नहीं होता, इसको देखने के लिए उनको एक डिवाइस को सबसे पहले बनाना था. दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और रिचर्ड एवराइट को इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. और रिचर्ड एवराइट फाइनली वॉन द थर्ड प्लेस इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में वाल्टर रीड आर्मी में भी उनको काम करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. As a high school junior, Richard Everett continued his advanced experiments on the monarch pupa. And as a high school junior only, Richard Everett continued his advanced experiment on the monarch pupa. मोनार्क बटरफ्लाई की प्यूपा के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा. That year, his project won first place at the
international science fair and gave him another chance to work in the army laboratory during in the summer. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. जब हाई स्कूल के सीनियर ईयर में हो जाते हैं तब उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से, पंखों से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बताया कि ये मोनार्क बटरफ्लाई तभी डेवलप करेगी एक नॉर्मल बटरफ्लाई के रूप में जबकि इसको हार्मोन, उसके गोल्ड स्पॉट से उसको हार्मोन की फीडिंग होती रहे। यानी इनको कहने का क्या मतलब था कि मोनार्क बटरफ्लाईज के प्यूपा पर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो स्पॉट्स ऑर्नामेंटल नहीं हैं, वो हार्मोन फीडिंग के लिए होते हैं। ये रिसर्च उन्होंने कर दिया। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने अपना पूरा समर सीजन वहीं पर बिता दिया। कहाँ पर? US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में ही बिता दिया। और इससे वो बहुत पॉपुलर हुए कि उन्होंने बताया कि वो जो गोल्डन स्पॉट्स थे वो ऑर्नामेंटल ना होकर के वो हार्मोनल थे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. After that, in the next summer season, he went to Harvard University and he again went back to the laboratory of the Department of Agriculture. And he also worked more on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है, इस चीज़ को उन्होंने और सर्च किया। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. एब्राइट ने एक और भी आइडिया निकाल लिया कि सेल की लाइफ क्या होती है। यह तब समझ में आया जब वो एक्सरे फोटोज़ निकाल रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन की। When he saw those photos, Ebright did not shout "Eureka" or even "I have got it." जब वो फोटोज़ को देख रहे थे तब उन्होंने कहा यूरेका। यूरेका का मतलब I have got it, मुझे मिल गया। But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles. उन्होंने देखा कि ये जो फोटोज़ थे उसको देख करके उनको बायोलॉजी का एक पजल सॉल्व कर दिया। उन्होंने बायोलॉजी की एक पहेली सॉल्व कर दी। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स DNA। यानी सेल अपने DNA को रीड कैसे कर सकता है, ये भी उन्होंने सॉल्व किया। DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट्स कंट्रोल्स हेरिडिटी। DNA क्या होता है? एक प्रकार का सब्सटेंस है ना। और वो सब्सटेंस होता कहाँ है? सेल के न्यूक्लियस में, इनसाइड होता है, और वो हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। यानी व्हेन वी टेक द DNA टेस्ट, तो थ्रू DNA टेस्ट वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर आवर सिम्टम्स एंड क्वालिटीज बिलोंगिंग टू आवर फादर्स, फोरफादर्स एटसेट्रा। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। DNA क्या करता है? सेल के फंक्शन को, फॉर्म को, शेप को ये डिटरमिन करता है, निश्चित करता है। दस DNA इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। दिस इज वाई DNA इज कॉल्ड द ब्लू प्रिंट ऑफ आवर लाइफ। DNA इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।